Now coming to depreciation. Depreciation again a very important expense that every company recognize in their books of accounts, most of the companies. So depreciation को recognize करने के भी we have around 4 methods, ठीक है, which are allowed under IFRS and GAAP. वो 4 methods हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से method है which basically tell you how much to recognize. देखो depreciation is a period cost, ठीक है, तो when का आंसर तो क्या है, जिस पीरियड में आपका कॉस्ट लग रहा है, जिस पीरियड का वो पर्टेन कर रहा है उतना रिकॉग्नाइज कर दो. सो व्हेन इज दैट, हाउ मच के लिए वी हैव दिस 4 मेथड्स. फर्स्ट अप इज SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है, लेट्स से यू हैव बॉट एन एसेट वर्थ $1 million, 10 लाख का, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. And at the end of 10th year, the asset will fetch you 1 lakh rupees. ठीक है, $1 lakh वो फेच करके देगा. सो $10 lakh आपको लगा था when you bought the machine, $1 lakh वो फेच करके देगा आपको 10 साल बाद, और the period of the life of the asset is 10 years. So according to SLM, straight line method, what you will be doing is 10 lakhs minus that 1 lakh, क्योंकि वो 1 lakh फेच करने वाला है. Total cost of the asset is 9 lakhs. So 9 lakhs divided by the number of years, which is 10. So you will be recognizing 90,000 per annum in your books of accounts as depreciation according to straight line method. Straight line method क्या बोलता है, जितना भी आपका एसेट का भाव है, जितने पे भी आपने खरीदा, उसमें से रेसिडुअल वैल्यू माइनस करो एंड उसको डिवाइड कर दो विद द नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ. So that will give you a value which you can deduct from your income statement every year as depreciation. Second is accelerated depreciation. Accelerated depreciation basically tells you कि ये जो आप एसेट ले रहे हो, ये एसेट आपको इनिशियल ईयर्स में ज्यादा वेयर एंड टेयर करना पड़ता है, बिकॉज यू यूज दैट एसेट टू फ्यूल मोर ऑफ योर रेवेन्यू एज कंपेयर टू लेटर years, right? पहले वो ज्यादा रेवेन्यू कमा के दे रहा है, ज्यादा चीजें बना के दे रहा है. लेटर इन द इयर्स वेयर एंड टेयर जैसे जैसे होता जाता है, वो एसेट का प्रोडक्टिविटी कम होता जाता है. सो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली टेल्स यू कि मशीन का जब आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो इन द इनिशियल ईयर्स, इट शुड बी मोर देन द लेटर ईयर्स. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप एक रेट ले लो. लेट्स से 100 रुपीज का एसेट था, उसमें से आपने 20 रुपीज, दैट इज 20% का डेप्रिसिएशन लगा दिया. नाउ द मशीन इज वर्थ 80. उसमें अगेन नेक्स्ट ईयर यू आर प्रोवाइडिंग अ 20% डेप्रिसिएशन, सो दैट विल बी 16 एंड इट विल बी 64 देन. सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ. 20% पे मैं डेप्रिसिएशन लगाते जा रहा हूं, और ये एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन है. सबसे ज्यादा 20, फिर 16, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? Third method is declining balance method. Declining balance method is one of the ways of accelerated depreciation, जहां पे ये बोल रहे हैं cost minus accumulated depreciation कर दो, which is nothing but this 100 minus 36 करोगे तो 64 आ जाएगा, right? Which is what this figure tells you. Cost minus accumulated depreciation, total depreciation till date, वो upon useful life कर दो. That will give you your declining balance method, right? और डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, ये जो डेप्रिसिएशन निकाला है आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, राइट? सो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इनटू 2 करोगे तो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड आ जाएगा, right? So these are the ways of calculating how much of the depreciation you will be recognizing in your books of accounts, right? I hope this is clear. Double declining balance method में क्या है? So cost minus accumulated depreciation, जो कि हम declining में भी कर रहे थे, cost minus accumulated depreciation divided by useful life, उसको आप 2 से multiply कर दो. Basically you are providing depreciation at an much higher accelerated rate. So cost minus accumulated depreciation divided by useful life को आपने multiply कर दिया with 2 and hence it is called double declining balance method. ठीक है, that is on the part of depreciation. Next is amortization.
अमोर्टाइजेशन में वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल्स। अमोर्टाइजेशन कब लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स में। अमोर्टाइजेशन इज व्हेन यू आर depreciating your intangible assets. It is called not depreciation but amortization. Amortization is different for finite intangibles and indefinite intangibles. मतलब क्या? अगर आप ट्रेडमार्क कर रहे हो, पेटेंट कर रहे हो, ऐसा कुछ intangibles है जिसका finite life है, it will be there only for 5 years, 10 years, 15 years or n number of years which is finite, there you will be providing depreciation or amortization at a straight line method. ठीक है, एक आपने यूजफुल लाइफ ले लिया, उसको basically you are dividing your total assets value by useful life, you will be getting the amortization that you will be charging for intangibles which have finite life. अगर ऐसा intangible है जिसका indefinite life है, such as goodwill, आपको पता नहीं है ना goodwill कितने साल लास्ट करने वाला है, there the goodwill is not amortized but checked for impairment every year. Impairment क्या होता है? We'll be discussing in the coming sessions. Impairment is basically permanent loss of value. अगर हमको पता चल गया ये एसेट इतना वैल्यू रखता ही नहीं है तो मैं उसको अपने एसेट के वैल्यू से हटा दूंगा. So if your intangible has finite life, it will be amortized, but if the intangibles have indefinite life, it will not be amortized but checked for impairment every year. Then next step is discontinued operations. मैंने यहाँ पे जब इनकम स्टेटमेंट बनाया था, आई रोट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से भी आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस हो सकता है. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होता क्या है? ऐसा कोई सेगमेंट था या ऐसे कुछ एसेट्स है जो आपको प्रॉफिट कमा के दे रहे थे, अब वो पूरा का पूरा सेगमेंट या एसेट आपने बेच दिया है, या फिर आपने सोचा है कि ये मैं सेल ऑफ करने वाला हूं. सो देयर इज मेजरमेंट डेट एंड देयर इज डिस्पोजल डेट. मेजरमेंट डेट मतलब जिस दिन फाइनलाइज हो गया कि मैं बेचने वाला हूं, एंड डिस्पोजल डेट इज जब एक्चुअली में वो बिका. तो हमारे स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं? एट द मेजरमेंट डेट इटसेल्फ इफ यू आर एबल टू एस्टिमेट द लॉस, वो लॉस आपको तुरंत का तुरंत अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखा देना चाहिए ऑन द मेजरमेंट डेट, बट एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं दिखा सकते हो, राइट? सो इफ देयर इज एनी एस्टिमेटेड लॉस, आप उसी दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दो आफ्टर टैक्स, लास्ट वाले ब्रैकेट में. इफ यू रिमेंबर, सब कुछ माइनस होने के बाद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का जितना भी प्रॉफिट या लॉस है, नेट ऑफ एसेट, नेट ऑफ टैक्स, जितना भी टैक्स लगने वाला वो हटा के आप दिखा सकते हो, बट एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं दिखाना है. एस्टिमेटेड प्रॉफिट कब दिखाओगे? जब डिस्पोजल हो जाएगा उस दिन. एसेट बिक ही गया है तो एसेट जब बिक जाएगा उस दिन तो आप जितना भी प्रॉफिट या लॉस एक्चुअली में हुआ है वो तो रिकॉग्नाइज करोगे ही, राइट? दिस इज ऑन द पार्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. इन द एक्सपेंस साइड, लास्ट आइटम इज प्रायर पीरियड आइटम्स. प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब क्या? इसमें हमको दो चार चीजें समझनी पड़ेगी. देखिए, देयर आर अकाउंटिंग पॉलिसीज, देयर आर अकाउंटिंग मेथड्स एंड देयर आर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. अकाउंटिंग पॉलिसी बोले तो क्या? देयर आर सर्टेन पॉलिसीज दैट आई टॉक्ड अबाउट यस्टरडे या इन द प्रीवियस सेशन कि हम लोग ये पॉलिसीज फॉलो करते हैं. अगर पॉलिसीज में मैंने कुछ चेंज किया है, लेट्स से आई वाज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पॉलिसी बट नाउ आई एम नॉट फॉलोइंग दैट पॉलिसी, मैंने बोला ये पॉलिसी मैं आपसे फॉलो नहीं करने वाला, मेरे तो पॉलिसी चेंज हो गया है. इन दैट केस आई नीड टू रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स. रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब जब जब मैं वो स्टेटमेंट दिखाऊंगा या बना रहा हूं, मेरे को सारे स्टेटमेंट वो चेंज करना पड़ेगा फॉर दैट इफेक्ट. अगर मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुआ है तो आई नीड टू रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बट अगर कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हुआ है, अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब क्या? आपने पहले समझा था कि द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट विल बी अराउंड 10 years. Now you are thinking that the useful life will be around 12 years. This is change in accounting estimate. In that change, you need not provide retrospective effect, but you can provide prospective effect. मतलब अब से उसका useful life 12 years मान लो, और अब से जो भी depreciation है वो 12 years के हिसाब से लगाओ. But पहले के books of accounts में जाके changes करने पड़ेंगे क्या? No.
So change in accounting policy requires retrospective effect. Change in accounting estimates require prospective effect. And change in accounting method, या फिर जब हमने कुछ incorrect method follow कर लिया है. There are certain methods that we follow. कुछ हमारे IFRS और GAAP हमको बोलते हैं ये methods follow करने हैं. But there could be a case where I have incorrectly followed an accounting method. अगर वो incorrect है और मेरे को अब change करना पड़ रहा है तो भी I need to retrospectively amend my books of accounts, right? मेरे financial statements retrospectively amend होंगे for policies and methods. Estimates में prospective, आगे का ही पीछे का amend करने की जरूरत नहीं है. So whenever you are retrospectively amending your books of accounts, कुछ profit, कुछ loss, कुछ changes in the value आएंगे. वो changes in the value कैसे दिखाओगे? By showing prior period item, right? मान लो कुछ accounting method change हुआ है और आपको कुछ नया expense recognize करना है right from 2001. तो आप 20 साल का expense अगर आप अपने books of accounts में दिखा रहे हो तो कुछ ना कुछ change आएगा. That changes will be shown as prior period item. Right? So that was on the part of expense recognition. Next up, we will be doing dilution of EPS. Thank you.